અંદર જે મૌલા બિરાજમાન છે એ દરેકના ઘટના અંદર બિરાજમાન છે. બરાબર? જેવી રીતે હા, મૌલાની મદદ. બોલો કરીમભાઈ, નસરીન આપા ક્યારના તમને એમને વાત કરવી છે? હા, તો આપણે જલાલુભાઈ, તો નસરીન આપાને આપણે થોડી વાત કરીએ. બરાબર? હા, જરૂર. તો સોરી, તમને કઈ રહી ગયું પૂછવાનું તો તમે બીજી લાઈન તમે જે હમણાં બોલવાના તે પૂરી કરી આપો અને પછી લઈ લો જે તમારું અધૂરું રહી ગયું બોલવાનું એ પૂરું કરી. હા, તો એ હું શોર્ટના અંદર તમને 1 મિનિટમાં કહું. અને આપણે આગળની વાત કરી છે, તમે જે મૌલાના રૂમી અને સંત તબરેજની વાત કરી, તો મૌલાના રૂમી હતા ને, એમની પાસે બધું શરીયતનું ઇલમ હતું અને એમના 10,000 શાગીર્દ હતા. પણ હજરત સંત તબરેજની જે મૌલાના હજરત ઇમામ અલાઉદ્દીન મોહમ્મદના ફરજંદ હતા અને રૂહાની ઇલમથી ભરપૂર હતા, એ એમની વિચારસરણી તોડી કે તમારી પાસે જે ઇલમ છે બધું શરીયતીનું છે, રૂહાનિયતમાં તમે કાંઈ જાણતા નથી. તો પહેલો એમનો ભરમ એ તોડ્યો. પછી એમને એ અહેસાસ કરાવ્યું કે મારા પાસે તો બધું શરીયત છે અને આની પાસે છે એ રૂહાનિયતનું ઇલમ છે. એ ભરમ તોડ્યો. તો એ ભરમ તૂટ્યો ને પછી એમના દિલના અંદર અહેસાસ થયો કે આમને મારા ઉસ્તાદ બનાવો. હવે ઉસ્તાદ એમ ના બનાવ્યા. સંત તબરેજે કીધું કે તમે મને ખામોશ મોહલ્લાના અંદર મળજો અને કીધું ના કે ખામોશ મોહલ્લો છે શું, અને મગરીબ પહેલા આવી જજો, અને મગરીબ પહેલા પછી આવે ને તો હું તમને મારા શાગીર્દ નહીં બનાવું. તો એ ઢૂંઢતા નીકળ્યા બધું, અને વેર વિખેર્યા અને પરસેવો થાકી ગયા, ના ખાધું ના પીર્યું, કારણ કે એમને અહેસાસ થઈ ગયો કે રૂહાની ઇલમ મારી પાસે નથી. અને પછી કબ્રસ્તાનમાં પહોંચ્યા મગરીબ પહેલા, અને તબરેજ એમના શાગીર્દ બનાવ્યા. અને પછી જોયું કે મૌલાના રૂમીના અંદર હજુ મોટાઈ નથી ગઈ, અને પહેલા જોયું કે એમને એમના મુર્શિદ પર, ઉસ્તાદ પર કેટલો ભરોસો છે. તો કીધું કે તમે મારું કામ કરશો? તો કે હા, કે શરાબ લેતા હો. તો એમને મારો ઉસ્તાદ શરાબ પીવે છે? તો બોટલ લીધી, એના પર રસ્મ બાંધી અને લકડીથી દૂર રાખી અને શરાબની બોટલ ભરવા ગયા. અને મુર્શિદને જે પસંદ છે એ ગળે લગાડીને, પોતાની છાતીએ લગાડીને લાવવું જોઈએ. બરાબર? મુર્શિદ પર શક ના કરવો જોઈએ. એમણે શક કર્યું. તો રસ્તામાં આવી રહ્યા હતા તો બોટલ ફૂટી ગઈ. તો પછી સંત તબરેજે મોજીજો કર્યો કે આ તો ગુલાબજળ છે એમ કરી છોડાવ્યા અને કીધું કે તમારા હજુ તમને મારા પર વિશ્વાસ નથી. મને ઉસ્તાદ ગુરુ તો બનાવે છે પણ મારા પર વિશ્વાસ નથી તમને. પછી એમની એ બધી મોટાઈ અને બધું ધીરે ધીરે શરીયતના ખ્યાલ એ બધું દૂર કરતા ગયા. હવે છેલ્લે શું કરવાનું હતું કે મૌલાના રૂમી રોજ સવાર થતી એટલે સંત તબરેજના ઘરે આવીને બેસી જતા. એ મગરીબ સુધી એમના પાસે બેસી રહેતા, એમના પાસે ઇલમ સાંભળતા. પણ સંત તબરેજ હંમેશા એમને એ સમજાવતા કે તમે મારા અંદર જે રૂહાની ઇશ્ક અને આ ખુદાની મોહબ્બત જોવા માંગો છો, એ ખુદા તમારા ઘટના અંદર જ છે, બીજે ક્યાંય નથી. તમે દૂરમાં દેખો, દિલમાં હે વસે. પણ મૌલાના રૂમીને આ સમજમાં નહોતું આવતું. એમને આદત પડી ગઈ હતી કે આ રૂહાની ઇશ્કના જલવા એમને એમના ઉસ્તાદના અંદર જોવાતા. તો એક વખતે સંત તબરેજ એમને ઇન્ફોર્મ કર્યા વગર એ ગામ છોડીને જતા રહ્યા. અને મૌલાના રૂમીએ બહુ કોશિશ કરી પણ ક્યાંય મુલાકાત ના થઈ. અને છેવટે ખબર પડી કે હવે મારા ઉસ્તાદના દીદાર મને નહીં થાય, એટલે શાંતિથી બેસી ગયા. જયારે શાંતિથી બેસી ગયા ને તો એમના હૃદયમાંથી એમના ઉસ્તાદની બધી વાતો યાદ આવવા લાગી. તો એમને કહ્યું કે મારા ઉસ્તાદ તો અહીંયા છે ને, તો આ કોણ બોલે છે? તો કે મારા ઉસ્તાદ ક્યાંય નથી ગયા, હું તો મારા દિલમાં જ બેઠા છે. અને પછી એમણે મસ્નવી મૌલાના રૂમી લખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું કે વાંસળી આટલો મધુર, સુંદર, સારો, બ્યુટીફુલ અવાજ આવે છે તો ક્યાંથી આવે છે, શું છે? તો કે આ મારી પ્રેમની પીડા છે, મારી મોહબ્બતની પીડા છે. હું મારા અસલથી જુદું થયું. તો તારું અસલ શું છે? તે હું જંગલના અંદર દરખ હતું, એ દરખમાંથી મને કાપવામાં આવ્યું, લકડી બનાવી, લકડીના અંદર ખોરાક પાડવામાં આવ્યો, ત્યારે હું વાંસળી બન્યો. અને વાંસળીના અંદરથી આ મધુર, આ રૂહાની વાતો થઈ રહી છે. બરાબર? તો આ જ વાત કરી છે તમને. તો બહુ બ્યુટીફુલ છે. તો ઇન્શાલ્લાહ પછી આપણે વાત કરીશું. થેન્ક યુ સવાલ પૂછવા માટે. અને હવે જવાબ મળ્યો, આપણે એ મુતાબિક આપણું જીવન બનાવી દઈએ. રાઈટ? આમીન આમીન આમીન. આપણે બધા બનાવ્યા. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. हाँ, तो तुम्हें तुम्हारा फोन म्यूट करी दो. नसरीन, आप मेरे से बात कर सकते हो. या अली मदद करीम भाई. मौला अली मदद, आप बोलिए. तो करमौला में बहुत देर से ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था. ओके. तो ऐसा कुछ हो तो आप मुझे आप उन लोगों को मैसेज दे दें. हाँ, मैं रुकी. हाँ राइट, समझ गया. हाँ, बोलिए अभी. तो एक बात शेयर करना है और एक सवाल है. पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि और लोगों की तरह आपने भी अपनी बच्ची से फरमान मुबारक पढ़ाए, रिकॉर्ड किए, माशाल्लाह. तो आपको बहुत बहुत मुबारक. मौला बच्चों का सब पूरे इस्माइली जगत का, बच्चों का सबका ईमान मौला आखिरी दम तक सलामत रखे.
आमीन। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, एक कुछ शेयर करना है और कुछ आपको सवाल पूछना है, बोलो। हाँ, तो शेयर ये करना है कि मैं अपने कलाम में मौला याद कर रही हूँ ना, तो बराबर। हाँ, तो गुजराती मतलब मेरे बच्चों को थोड़ा कम आती है, तो मतलब हिंदी बराबर। के जैसा ही है ना। तो मैं उन लोगों को बोली कि मुस्कान या और मोइस को, दोनों को भी, कि बेटा मेरा ये जरा लो ना, कि मैं पढ़ी हूँ तो मैं राइट बोल रही हूँ कि नहीं। तो बोले मम्मी हमको कहते बोले हिंदी के जैसा ही है बेटा, ले लेना। तो बोले ठीक है। तो मैं उसको सुना रही थी, तो सुनते सुनते उसके वो पानी की प्यास वाला जो आया, थर्ड वाला, तो पानी की प्यास से माल की प्यास जानो होवे सखत, तो मुस्कान एकदम से वो हो गई और उसको अच्छा लगा, और मालूम नहीं क्या, तो दूसरे दिन सुबह में मेरे को आके बोलती है मम्मी उठो, दुआ का टाइम हो गया। तो मतलब उसको अंदर से सुबह नींद में से उठ के आई और मेरे को उठाने के लिए कि मम्मी चलो उठो, दुआ का टाइम हो गया, ऐसा। तो नहीं तो मैं उसको उठाती हूँ, तो मैं तो मतलब जागती रहती हूँ वो टाइम पे, मैं उठ जाती हूँ 3:30-4 बजे मेरे टाइम से। तो आई तो मेरे को मतलब खुशी हुई, तो मैं बोली बेटा आज कैसा उठ के आई? तो बोले मम्मी वो कल अपन कलाम जो आप बोल रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपने को अपना रूहानी कुछ करना है, तो मैं उठी। फिर वो 2 ही दिन उठी, लेकिन मतलब उठी। माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी खिदमत की, इल्म की खिदमत की, और वो कलाम में उनको ये जानने मिला कि भाई हमारे रूह के लिए कुछ हमको करना चाहिए, राइट। तो वो बात उनके दिल तक पहुंच गई, तो उठे 2 दिन। अभी क्या है कि इंशाल्लाह उनके एजुकेशन और जॉब के हिसाब से उनको जरा टाइम टेबल बताओ और थोड़ा धीरे धीरे फॉलो करें, बराबर। बच्चों का शेड्यूल बहुत टाइट होता है एजुकेशन और जॉब के हिसाब से, राइट। तो शाम को जमात खाने रोज ले जाओ, और सुबह भी मतलब कभी रोज नहीं आ सकते तो घर पे उठ के दुआ पढ़े, या दुआ के टाइम पे पढ़ ले, या सैटरडे संडे को जरूर सुबह जमा खाने आवे, राइट। तो धीरे धीरे बच्चों के लिए इस तरह मेहनत लेनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मुबारक आपको। थैंक यू। और सवाल ये था कि कल की वायज में और आज भी आप बोले कि अपने को जो बंदगी का टाइम है नूरानी वक्त का, तो उसमें अपने को जो है, मेरा सवाल ये है कि इल्म जो अपन याद करते हैं वो भी मतलब अपने अंदर अपन वो पढ़ सकते हैं, या फिर अपने को बोल मिला है वो ही अपने को बोलना है? क्योंकि कल आप बता रहे थे कि दोनों चीजें एक ही है, और दोनों से भी अपने को रोशनी हासिल हो सकती है। तो मेरे को उसमें बोल में जो है ना उतना ध्यान नहीं लगता है। तो मैं अभी थोड़े दिन से मैं जो है ना जो भी कलाम में याद करी हूँ, तो वो पहले मैं अपने अंदर पूरे रिपीट कर लेती हूँ वो टाइम पे। फिर वो 2-3 बार होने के बाद में फिर मैं बोल की प्रैक्टिस करती हूँ। तो कैसा करना बेटर रहेगा कि खाली इल्म से मेरा ध्यान लग रहा है उसमें, और बोल में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा, तो मैं बोल ली हूँ, तो वो कंपलसरी है बैठ के वो बोल ही पढ़ना, वो पूछना था। बराबर। तो अभी आप बैतुल खाल की बंदी करते हो, तो समझो कि एवरेजली आप 30 मिनट लगभग आधा टाइम आप बोल पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, आधा टाइम आप इल्म ज्ञान जो आपने फरमान कलाम याद किए उसका रटन करते हो, राइट। ऐसा करते हो, राइट। हाँ। तो देखो, जो भी बैतुल ख्याल के मेंबर है, तो हम जब बैतुल ख्याल का बोल लेने गए तो मौला ने हमको समझाया, राइट। तो कैसे कंसंट्रेट करने का, तो हम हमारी आंखें बंद करके आसन लेते हैं, और कल जैसे मैंने बताया था कि समझो कि हमारा बोल या अली है, तो या अली हमारी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज, समझो कि हमारी कंफर्टेबल लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू में या अली कैसे लिखा जाता है उसका जो नक्श है वो हमारे आंखें बंद की हमारे सामने होना चाहिए, और उसका हम एक रिदम से रटन करें, या अली या अली या अली। ये सबसे पहला स्टेज है बंदी का, बैतुल ख्याल की बंदी का, बराबर। तो क्या होता है कि हम जो, मैं आपको मेरी बैतुल ख्याल की 2 आयत, आपने सुनी मेरी बैतुल ख्याल की खास 2 आयत है? हाँ, सुनी थी।
मैंने आपको 2 वाइज भेजी थी राइट, बैतुल ख्याल की वाइज। हाँ, वो आधी आंखें खुली रख के अपने को वो रिटर्न करना हाँ, है। लेकिन वो दो प्रैक्टिस कंप्लीट कर रही वाइज हूँ मैं वैसे। दो कंप्लीट वाइज आपने सुनी है राइट वो? हाँ, मेरे को कौन मुनीरा आपा भेजे थे शायद। तो वो आप ध्यान से सुनना दोबारा, ओके? तो इसमें मेरे सारी चीजें, ये सारे जो क्वेश्चन है ना बैतुल ख्याल की बंदगी के बारे में, तो आप सुनो वापस, कोई बात नहीं। तो पहला स्टेज ये है कि हम आंखें बंद की है, हमारे सामने हमारा बोल का जो नक्श है, कैसे लिखा जाता है वो सामने है, और हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बार बार कोशिश करते हैं और जिक्र चालू रखते हैं, या अली। और मौला ने फरमाया बोल अने बोलना अर्थ ऊपर ध्यान केंद्रित, बोल और उसकी मायने पे ध्यान लगाओ राइट। तो हमने जब हमारा बोल लिया था तो मौला ने उसकी मायना समझाई थी राइट। तो अभी गलती से आप बोल मत देना कि मायना क्या है और बोल क्या है। तो मैंने आपको बताया, समझो कि हमारा बोल या अली है, तो अली का मतलब क्या होता है? खुदा का नाम है, यानी टॉप मोस्ट, गुजराती में बोलते हैं सर्वोच्च, इंग्लिश में बोलते हैं ही हु इज अबव ऑल, वो सबसे बालातर है वो, यानी वो नूर है, निरंजन निराकार है राइट। अनामी है, नाम नहीं है, लेकिन हमको याद करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए एक हमको नाम दिया गया है, या अली, या अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, अल खालिक, ऐसा नाम दिया गया है राइट। तो हम जब मायना की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ही हु इज अबव ऑल, वो सबसे जो बालातर है, या अर रहमान है, अर रहीम है, तो गुजराती में उसकी मायना है कि बेहद कृपालु, बेहद दयालु। अल करीम है तो मोस्ट जिनरस, सकी, ये उसकी मायना है। तो कहने का मतलब जो हम खुदा की इबादत करते हैं, जो नाम लेते हैं, उसकी मायना क्या है, बराबर? तो हमारा जो बोल है ना, वो उसका एट्रीब्यूट है मौला का, उसका गुण है। तो वो नूर की बारिश होगी, वो एहसास होगा। मौला ने फरमाया जे बोल हसे तेवुं स्वरूप તમે જોઈ શકશો, यानी वो मौला के नाम का जो गुण है, एट्रीब्यूट है, जो तारीफ है, उसका मौला हमको एहसास करेगा कि मैं कैसे बालातर हूँ, मैं कैसे रहीम हूँ, मैं कैसे रहमान हूँ, मैं कैसे खालिक हूँ, मैं कैसे करीम हूँ, उसका दीदार हमको कराएगा, बराबर? तो सबसे पहले स्टेज कोई भी बंदी करता है तो ये है कि अपना बैतुल ख्याल का बोल उसके नक्श सामने हो और उसका जिक्र करता है राइट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमने इल्म बिल्कुल हासिल नहीं किया है तो वो एक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो दुनिया के ख्यालात आते हैं, बहुत ख्यालात आते हैं, दुनिया, कुटुंब, परिवार, समाज, नौकरी, धंधा, असगर सुरा, बदअमाल, दुनिया की मोहब्बत, बड़ाई, फिक्र, चिंता, डर, भय, ये सारे ख्यालात आते हैं राइट, और हमको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि बैतुल ख्याल के मेंबरों को मौला ने 4 से 5 दफा बताया कि 1 कलाक से ज्यादा इबादत बंद है, तो बंद है मतलब 1 ही घंटा करो। तो दूसरे घंटे क्या करने का, तो मैंने भी बताया कि इल्म इदारी स्पेंड करो, फरमान कलाम याद करो, इल्म पढ़ो। तो अभी हमारी रोजीदी जिंदगी में जो हम दुनिया की मोहब्बत में फंसे रहते थे, इल्म नहीं था, तो उसकी जगह इल्म ने ले ली। तो हमें हमारा दिन का जो वक्त है, इल्म बिजनेस में जाते हैं, फरमान कलाम याद करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो जब हम बैतुल ख्याल की बंदी में बहते हैं ना, तो पूरा तो वो इल्म आ जाता है। जो पहले दुनिया के ख्यालात आते थे, अभी वो इल्म आता है राइट, वो इल्म आता है, इल्म आता है राइट, वो इल्म आता है। तो यहाँ पे हमको ये होता है कि अभी मैं बैतुल ख्याल के बोल कॉन्सेंट्रेट करूं या इल्म पे करूं। तो एक क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है, अभी मैं कुछ बोलता हूँ तो आप खुद ही समझ जाना। तो देखो, मैंने कल भी इसके मुताबिक आपको काफी चीजें बताई थी। तो एक है कि लोग सिर्फ बोल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसकी मायना पे नहीं करते। कोई भी चीज की मायना समझनी हो तो इल्म हासिल करना पड़ता है, बराबर? तो एक ये चीज बताई, दोनों चीज अलग की, बोल और बोल की मायना। दूसरी जगह पे मौला ने फरमाया कि आप सिर्फ बैतुल ख्याल में मत रहना, हमारे ख्याल में भी रहना। तो बैतुल ख्याल का ख्याल तो हम मौला का नाम लेते हैं, तो मौला का ही ख्याल करते हैं। तो मौला ने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला कि आप मेरे भी ख्याल में रहना? तो कोई और भी चीज मौला ने अलग करके बताई। और एक चीज मौला ने बताई कि सिर्फ आप मेरा नाम लो इतना काफी नहीं है, मुझे फार्म में लाओ। तो फार्म में लाना मतलब एक एहसास में आना कि हाजिर इमाम कैसे हाजिर है राइट। सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं है।
तो इस तरह मौला ने बताया। तो अभी हम जो या अली करते हैं, सारे मौला के जितने भी नाम है, अर रहीम है, अर रहमान है, अल करीम है, खालिक है, वो सारे नाम है ना एक ही नाम के अंदर आ जाते हैं, या अली के अंदर आ जाते हैं, बराबर। और वो या अली और कुछ नहीं है, मौला मुर्तजा अली इल्म के समंदर है। तो हम जो बोल का रटन करते हैं और उसका जो ओरिजिन है या अली, वो और कुछ नहीं है, वो इल्म का समंदर है। अभी वो मेहरबान होके आपको इल्म दे रहा है और आप 4 से 5 में बैठते हो तो वो इल्म आता है आपके सामने, वो इल्म आता है, राइट। अभी आपका प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि आपके साथ वो बात बन रही है कि तमारामा કેટલાક जन, सब नहीं, सबको नहीं बोला, चंद लोगों के लिए बोला कि तमारामा કેટલાક जन हिम्मत करी जमात खाने जाए थे અને इबादत बंदी करे थे। जो जमात खाने जई इबादत बंदी करे थे, हिम्मत राखे थे, તેઓનું દિલ इल्म ऊपर વધારે હોય છે। तो अभी मकसद कितने काम आए, एक तो हिम्मत करना आया, हिम्मत करके जमात खाने जाना आया, 2, और इबादत बंदी करना आया, और क्या आया, ये तीनों काम आए। लेकिन उसका मकसद क्या है कि दिल इल्म पे आया। तो अभी आपका दिल इल्म पे आ रहा है, आप समझे। अभी आपको जो इल्म याद आएगा, पहले याद आएगा, तो पहले आपका दिल कहेगा कि मुझे इल्म याद आ रहा है, लेकिन मुझे लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माय गोल। तो कोई बात नहीं, आप गोल पे ही कॉन्सेंट्रेट करने बैठे हो, लेकिन फरमान आपको बहुत याद आते हैं और हमको अच्छा भी फील होता है। तो फरमान भी नूरी है और इसमें आजम भी नूर है, और हमारा इल्म से प्रूव होता है कि मौला ने फरमाया कि ये जाप है वो नूर को देखने के लिए, तो जाप से भी नूर को देखा जाता है। और मौला ने कलाम में फरमाया कि नित मिजलस में नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही, नित मिजलस में नित जाता घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना उसमें जिससे हक दीदार। तो इल्म से भी दीदार होते हैं, बराबर। तो दोनों एक ही नूर है, लेकिन वो दोनों को प्रैक्टिस के हिसाब से तो अलग नाम दिए गए हैं, राइट। एक को इसमें आजम बोल कहा गया है और एक को इल्म मुबारक कहा गया है, बराबर। तो आप 4 से 5 के बंदी में बैठते हो तो फरमान मुबारक आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, तो इल्म में रहो, कोई बात नहीं। जैसा आपको ऐसा याद आवे कि हाँ मैं गोल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, अभी मैं इल्म पे कॉन्सेंट्रेट, तो वापस आप गोल पे आ जाओ। इस तरह प्रैक्टिस चालू रखो। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको जो फरमान याद आते हैं ना, वो सारे फरमान आपको याद नहीं आएंगे, उसमें से और करीब के आपके रूह की जो हालत है वो फरमान आपको याद आएंगे। और मौला कंटिन्यू आपको वही बात बताएगा, वही एक ना एक बात बताएगा, वो फरमान आपको याद आएगा। तो वहां मौला आपको नसीहत कर रहा है कि आपकी रूह की हालत क्या है, आपको क्या करना है। क्योंकि देखो रसूलुल्लाह ने 18 साल तक गारे हिरा की गुफा में क्या किया, अल्लाहू 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 का जिक्र किया, यानी अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है जिक्र किया। तो उनको मिला क्या, मैं आपको बताऊं क्या मिला उनको। मेरा जो है ना, नहीं मेरा तो 12 साल बाद हुई। जो गारे हिरा की गुफा में बैठा है तो पहली आयत सूरह अलग की है, और उसके बाद की आयत है ना, वही दिन उनकी दूसरी आयत लैलतुल कद्र की उतरी और वो कुरान उतरना नाजिल हुआ। उसके 10-12 साल बाद मेराज हुई। लेकिन उनको पहला क्या हुक्म हुआ खुदा का गारे हिरा की गुफा में, जब उनको कॉन्सेंट्रेट हुए तो उनको पहला हुक्म ये हुआ कि पढ़, तेरे परवदिगार का नाम लेके पढ़। तो पढ़ने का हुक्म हुआ, राइट। तो 18 साल की जहमत के बाद रसूलुल्लाह को क्या मिला, इल्म मिला कि इल्म पढ़। कुरान इल्म है, जो ओरिजिनल कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, जो खुदा के और से जिब्राइल फिरस्ता लेके उनके लिए आया, वो इल्म था, राइट। जो मौला मुर्तजा अली किताब लेके मस्जिद में गए लोगों को, वो इल्म उन पे नवाजिश हुई। तो 18 साल की जहमत के बाद उनको वो चीज मिली, वो आज हमको मौला डायरेक्ट दे रहा है, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो घूम के बात उधर ही आएगी कि इल्म के बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा। इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान की जाती है। तो बाद में रसूलुल्लाह पे 3 वक्त ये हुक्म आया कि चद्दर ओढ़ के सोने वाला उठ, इल्म पढ़। उसके बाद ये भी कहा गया कि आधी रात को उठ,
ना आधे से कम ना ज्यादा, और मीठे मधुर अच्छे आवाज के अंदर इल्म पढ़, कुरान पढ़। जब ये पढ़ लिया, इल्म हासिल कर दिया, तो बाद में क्या हुक्म आया कि चद्दर ओढ़ के सोने वाला उठ, लोगों को नसीहत कर। तो हमारी जिंदगी में भी ये बनता है, बैतुल खाल की बंदगी ध्यान नहीं लगता है तो हम वहां रुक नहीं जाते, हम उसका रास्ता ढूंढते हैं। जो पीर सदरी साहब ने रास्ता बताया कि कुंभे बांधू जल रहे तेम गिना ने बांधू मन रहे, तो हम इल्म पे आते हैं और वहां भी रूहानी छुटके के फरमान पे आते हैं, उसकी मायना पे आते हैं, हकीकी मायना पे आते हैं, और बाद में हुक्म होता है कि नसीहत करो, पीर पैगंबर का दर्जा है। बराबर है? तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बन रही है, राइट? तो देखो, बैतुल खाल की बंदी प्रैक्टिस आंखें बंद करके बैतुल खाल के बोल पे कंसंट्रेट करके की जाती है। इल्म की प्रैक्टिस आंखें बंद करके भी हम सोच सकते हैं और खुली आंखें से भी कर सकते हैं। खुली आंखें से हम वॉइस की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, इल्म मिजाली सुन सकते हैं, इल्म पढ़ सकते हैं। खुली आंखें रख के भी हम इल्म पे सोच सकते हैं। बराबर? अभी आपका बॉटम लाइन है कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट? तो देखो, एक बैतुल खाल फरमान के अंदर मौला ने ये भी बताया कि आप जो बंदगी करते हो, बराबर, तो उसके मुताबिक आप काम करो अपना। तो अगर आप बैतुल खाल की बंदी कर रहे हो तो मौला ने वहां फरमाया कि आप बैतुल खाल के बोल पे कंसंट्रेट करो, राइट? तो अभी आप 4 से 5 ये करते हो तो इल्म मुबारक भी आता है और आप वो कॉन्सेंट्रेट इसमें आजम पर करने चाहते तो आप ऑलवेज बंदगी में बैठो, तो अभी इसमें आजम पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपका इसमें आजम और उसकी मायना क्या है उसको कॉन्सेंट्रेट करो, और इल्म आता है, राइट? आपके पास इल्म आता है तो उसको सुनो कि मौला कौन सा इल्म मुझे सुना रहा है, राइट? उसको समझने की कोशिश करो। वापस आपको ये ख्याल आवे कि मैं तो बैतुल खाल के बोल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, अभी मैं फरमान पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। वापस आप बैतुल खाल के बोल पे आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई ऐसा मत सोचो कि बैतुल खाल की बंदी के दरमियान मुझे फरमान याद आ रहे, तो दोनों एक ही नूर है, एक ही नूर है। इल्म ईमान सब जिक्रुश कहिए, एक गिनान की कड़ी है कि इल्म भी जिक्र है, सिर्फ बैतुल खाल का बोल जिक्र नहीं है, इल्म भी जिक्र है, ईमान भी जिक्र है। ईमान जो नूर है वो भी जिक्र है। जिक्र यानी याद करना, हमेशा मौला मुर्तज़ा ने याद करशो, छेल्ला दम सुधी जिक्र करशो। तो इसके बारे में मैं यहाँ तक ही कह सकता हूँ, आगे का बात आपको खुद ही पता चल जाएगी जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपकी बैतुल खाल की बंदी के अंदर। आपको खुद पता चलेगा कि रोशनी और कुछ नहीं है, हमारे फरमान मख्फी है, वो आपके लिए रोशनी है। मख्फी यानी बातून, तो इल्म का जो बातून है ना वो रोशनी है। रसूलुल्लाह को महराज हुई, महराज खुदा का रसूल पाया, जिन्हें सब रात की थी हक बनगी, सो महराज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी। रात को जाके एक ध्यान सु पैरवी रसूल के करे किरदार, तो उस मोमन को महराज होवे, क्या होवे? अपने रब का दीदार। तो महराज ने क्या पाया रसूलुल्लाह ने? उनको नसीहत हुई कि इल्म मिजालिस की नसीहत हुई। अली ही अल्लाह है, उसकी शनाख्त हुई। अली का मर्तबा कितना बड़ा है, कितना बुलंद है, वो शनाख्त हुई। और अली हमेशा तेरे पास है, ये सारी शनाख्तें हुई, राइट? तो हमारे साथ भी बैतुल खाल के बंदी के अंदर यही बनेगा। जो करीम हाजरी इमाम सही खुदाबिन आलमी है, अभी हम जबान से बोलते हैं, कान से बोलते हैं, लेकिन वो ईमान रोशन हो जाएगा। इल्म मिजालिस की अहमियत क्या है वो चीज रोशन हो जाएगी। मौला मुर्तज़ा का मर्तबा कितना बुलंद है वो चीज रोशन हो जाएगी। अब रसूलुल्लाह ने बोला है कि मैं अकेला कभी नहीं खाता, तो मौला मुर्तज़ा का हाथ आया कि मैं हूं ना तेरे साथ खाने वाला, राइट? तो ये चीज है कि मौला हमेशा मेरे पास ही है, और सबसे बालातर ये चीज समझ में आएगी कि तेरे और मेरे में कोई जुदाई नहीं है। आप समझे? थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना भी और ये समझना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एकदम पर्सनली इसकी बात है, राइट? शॉर्ट के अंदर आप अच्छी तरीके से आप समझा है ना, तो समझ में आया जी। तो शॉर्ट के अंदर आप बोलो। हाँ नहीं, आप अच्छी तरीके से समझा है ना, तो मेरे को समझ में आया। बोलियो ना, तो बहुत कंफ्यूजन था मेरे को कि ये इल्म आ रहा है बार बार, तो या मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ या इस पे करूँ, तो अभी समझ में आ गया। अभी शॉर्ट के अंदर आधी मिनट में एक चीज बताता हूँ, आप भी सुन रहे लोग, तो आप बैतुल खाल की बंदगी में बैठो, तो मौला ने फरमाया बोल और बोल की मायना को कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो समझ के आप बैठो।
और आप जानबूझ के ऐसी कोशिश ना करो कि मैं इल्म का ध्यान करूं, राइट? अच्छा। आप बोल और बोल की मायना पे कॉन्सेंट्रेट करने चाहते हो, वो खुद को खुद इल्म आ जाता है। और जब मौला राजी होता है ना, तो आप तो या अली कर रहे हो ना, पुकार रहे हो ना, वो मौला मुतजाल इल्म का समंदर है, तो आप पे इल्म की बारिश बरसाता है, नूर की। तो आप बोल और बोल की मायना पे कॉन्सेंट्रेट करो, वो खुद वो नूर की बारिश होगी, तो आप खुद उस पे चले जाओगे, इल्म पे चले जाओगे, आपको बहुत खुशी होगी। इल्म मौला जो फरमा रहे इल्म में रहने के लिए, और वो दरमियान आपको वापस याद आ गया कि मुझे बोल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वापस आप बोल पे चले जाओ। आप समझे? इस तरह होता रहेगा और आपको पता चलेगा एक दिन के बोल वो भी नूर है, इल्म भी नूर है, और उसमें कोई जुदाई नहीं है। तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, आगे की बात आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। सही है? थैंक यू वेरी मच। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत ब्यूटीफुल। ये चीज समझ में आ जावे ना, तो आजकल सब अलग अलग इल्म मिजालिस में और सब आलिमों में, इस्माइली मिशनरियों में जो मसले चल रहे हैं समझने के लिए, वो सारे मसले हल हो जाएंगे अगर ये चीज समझ में आ गई जो अभी बोली गई वो, राइट? बोलने से और सुनने से समझ में नहीं आती उसको। 1 घंटा मौला ने फरमाया ना कि 1 घंटे से ज्यादा इबादत बंद है, पहले तो ये समझो। तो 23 घंटे इल्म में रहने की कोशिश करो, तभी ये चीज समझ में आएगी। बराबर? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और बहुत खुशी हुई मुझे जवाब देने के लिए। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। तो अभी हमारा टाइम हो गया है, तो और भी 8 मिनट लगेगी, तो टोटल 15 मिनट ज्यादा हो जाएगी। तो मैं, अगर दूसरों को कोई सवाल हो तो आप मुझे वॉइस मेल भेजो या नेक्स्ट इल्म मिजालिस में रूबरू आओ लाइन पे और हम बात करेंगे। तो अभी हम फरमान मुबारक की यादी देके दुआएं देके इल्म मिजालिस पूरी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना फोन म्यूट कर दें और आपको मुबारक की लाइन पे आने के लिए, सवाल पूछने के लिए आपको जलालू भाई के थैंक यू। મોલા અલી મદદ શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, યુ આર મોસ્ટ વેલકમ। તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ। આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે। અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ। જે માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાલીને ચલાવે છે, તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ। જુઓ, આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે। તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ, તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ। અમે અહીં આવ્યા છીએ તે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ। ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે। અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ। જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી। બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ। અમે અને તમે એક છીએ। હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી। તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી ઓલાદ માફક છો। મુરીદ તથા મુર્શીદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી। મોમન અને મુર્શીદ ક્યારે પણ જુદા નથી। તેઓ હંમેશા એક જ છે। એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ। તમે અમારો ઇશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઇશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી। અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવડો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે। ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ। આ દુઆ સગળી દુઆ કરતા વધારે છે। ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો। એમ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ। જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો। જેમ જ્ઞાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો। અમારા ફરમાન એ જ્ઞાન છે। જ્ઞાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે, તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ। હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પઢો। અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે। અમારા સિધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સિધાવી ગયા। જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો। હાજર ઇમામ જાહેરીમાં હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ। અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ। અમે તમને સૌને એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ
કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો અને જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેકે રૂહાની સંતો ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સિધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે 2 બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતા અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સિધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે, તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતા ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન. ઉત્તમ દુઆ આશીષ. ખાના વદાન. આજે તમામ મિલતના ભાઈ બહેનોને અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ઘણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હુસૈની હાજરીમાં મહેરબાની કરી કરમ બક્ષિશ ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે. આમીન. ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. આમીન. બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. આમીન. બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે. આમીન. બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે. આમીન. મૌલા બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, બધી મુશ્કેલીઓ આસાન કરે, એમને જમાતખાનાની, મૌલાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની ખિદમત આપે, મૌલાની પોતાના ઘરની, જમાતની અને ઇલમની મોહબ્બત આપે. છેલ્લા દમ સુધી એમનું ઈમાન સલામત રહે. આમીન. બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી મૌલા કુલ ઇસ્માઇલીઓની, કુલ કાયનાતના, મૌલાના પોતાના અને કુલ કાયનાતના મૌલા ગુનાહ માફ કરે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મૌલા પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરે. આમીન. ખિદમત દરમિયાન કોઈ પરખ કે કસોટી ના નાખે. આમીન. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. આમીન. મૌલા વધારે ખિદમત આપે, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા આપે. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મૌલાએ પોતાના ઘરની, જમાતની, ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરી. ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખી. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો. આપણને મૌલાએ વધારે ખિદમત આપી, ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા આપી. આપણે મૌલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. આમીન. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકને ધંધો, રોજગાર, કમાણીમાં બરકત આપે, કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે, દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. આમીન. ઇલમ મિજાલિસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં સમત સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. આમીન. લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આમીન. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ, શાંતિ, સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આમીન. આપણા દિલ નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. આમીન. ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતી સાચી સમજ આપે. આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન. આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન. હાજરી તમામ ઇલમ મિલતના ભાઈ બહેનોના, ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના
अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन धनी सलामत दातार सरकार आका नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजरी इमाम मेहरबानी करी करम बख्शी फरमावे दया करी कुल रूहानियों ना कुल गुनाह माफ करे आमीन बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे आमीन असल मुबारक मां वासल करे आमीन શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર સોરી તમારી 15 મિનિટ વધારે લીધી છે તો દરગુજર ચાહું છું અને દુઆ કરું છું આશા રાખું છું તમને ઘરે કે કોઈ પણ બીજી જગ્યાએ તમને કે ફેમિલી મેમ્બરોને કોઈને કોઈ તકલીફ ના થાય શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર યા અલી મદદ मौला अली मदद